Hello everyone. As before, we'll just wait for a couple of minutes. Hi Madhura, hi Masya, hi Malvika. I create good food. How's everyone? Nice to see you. Ah, just waiting for a few more people to join in. I also would like people to let me know if there's something new which has Instagram has started. Is the title other than the pinning of the comment down there? If you can see the title when you join, just let me know, please. Uh, hi, Ship Shetty, Hayaki, and hello. Yes, our guest too is here, so I'm very glad to see him too. And yes, I will have him on screen soon. So yes, very much excited to have him here today. Uh, I will take in your request. I have it with me, so just give me a minute or so to start the session formally. And that is Preeti also coming in. Hi Preeti, hope you're well. Hi Raki, how you doing? Good. So, wow. Okay. So this looks interesting. Hi Rashmi, nice to see you too. And okay, so it's the 1 minute count which is over, and hence I will now start. हेलो माय नेम इज अमित सांगेकर. मेरा नाम है अमित सांगेकर. माझं नाव आहे अमित सांगेकर. वेलकम टू बियॉन्ड रीडिंग विथ यू सीजन 2 session 10, where we do poetry reading and more. I'm sure some of you would have noticed a change in the template about when I sent in the post about Instagram story and on the Facebook post. I'm still experimenting with it, but I want to give a shout out to Purva Bakalkar and Alok Karandikar, who have been my sounding boards for this. They will not quite agree with my template as of now, but I've taken the liberty to still put it out. I'll experiment it with a few more times, and then let's see if we can figure out a good template for that. So thank you to both of them. So about this session now, courage, sahas, has so many different meanings for each one of us. The spirit of not giving up, of keep on trying, is kind of imbibed in us. It's literally imbibed in us in some way or the other. In some cases it gets stifled, दबी रह जाती है, या कभी उभर के आ जाती है. So I'll start off with a poem that reflects this spirit. Now, a very interesting thing about the poem which I'm going to recite, काफी समय तक लोगों को ऐसा लगा था कि ये जो कविता है ये कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की है. But in around 2015, I think, his son, Amitabh Bachchan, actually cleared the air around this and told that ये मेरे बाबूजी की कविता नहीं है, ये कविता एक्चुअली है श्री सोहन लाल द्विवेदी जी की. कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. And this is a poem which a lot of us have grown up with in our Hindi textbooks. So let me start with this poem. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती. डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.
असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, सच अमेजिंग वर्ड्स बाय श्री सोहन लाल द्विवेदी जी. The reason I have chosen this poem will be evident as we go into the session. I'm sure each one of us has faced umpteen number of ups and downs at different times in their lives. What happens to this human mind when our chips are down? How do we push ourselves and get ourselves back on track? So today's guest is this very, very young, amazing personality from Raipur, Chhattisgarh in India. He's India's first double amputee mountaineer among many, many other things. Yesterday was the 6th anniversary of the tragic accident that took away both his feet at the age of 21. But look at his spirit. He calls this day as Ampuversary and actually uses it as an opportunity to tell others why it is not the end until it is actually the end. Today, this 27-year-old youngster, who is an assistant engineer with the Chhattisgarh Housing Board, is here to speak with us on the topic of scaling heights, ऊंचाइयों को छूना. My friends, I've sent him a request. Hi. Hello, sir. How are you? I'm good. Can you hear me properly? Yes, sir. ओके, कैन एवरीबडी एल्स, मैं एक बार सिर्फ चेक करूंगा कि लोग हमें सुन सकते हैं कि नहीं ठीक से. इफ पीपल कुड जस्ट टेल मी इफ यू कैन सी अस, हियर अस प्रॉपर्ली. इज देयर एन echo? Okay. Chitra Sen, is it possible that if you can remove your headphones, Okay. just check once? Okay. I'll just check one now. Yes, sir. Can you hear me? Okay, I can hear now. Chitra Sen has just removed his. Is there an echo now? Can anybody please tell us? This has happened. ये एक बार पहले भी हुआ है, but just check करते हैं जरा. Is there still an echo there? If you can, somebody tell us, please. No echo. Great. Chitra Sen, ये ठीक रहेगा. So, नाइस. सो दिस फ्रेंड्स, दोस्तों, ये है चित्र सेन साहू. चित्र सेन, इट इज बहुत 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 धन्यवाद कि आपने आज हमारे लिए आपने समय निकाला. एंड इट इज़ वेरी वेरी नाइस टू हैव यू विथ अस टुडे. वहां पर अब कैसे चल रहा है सब कुछ? एकदम सही सर. फाइन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके. लोग आपको सुनने के लिए काफ़ी बेकरार है. एंड आई हैव सीन दैट इन द कमेंट्स एंड इन ऑल दिस विच इज़ बिन हैपनिंग. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर टू लिसन टू योर स्टोरी, हाउ ऑल दिस हैज़ हैपेंड. बट शुरुआत करने से पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ. हाउ वॉज योर चाइल्डहुड? आप किस तरह के बच्चे थे? लाइक आई एम ग्रोइंग इन अ स्मॉल विलेज सर. लाइक बेलौदी उसका नाम है, जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बालोद, जो Okay. अभी अभी बना है. छत्तीसगढ़ का मैं हूँ. तो मेरी स्कूलिंग पूरे वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है. और वो स्कूल हमको स्कूलिंग पूरी 12th तक के वहीं हुई है. और तब मैं बचपन में बहुत हम क्रिकेट के बहुत शौकीन थे. अच्छा. तो लाइक हम ऑलमोस्ट हमेशा प्लान करते कि लाइक भाई तुम बैट लाना, तुम स्टंप गड़ाना, मैं अपन आएंगे ऐसे करके. तो सुबह और शाम हम लोग का क्रिकेट में ही निकलता था. और यूजुअली आई बिलोंग्स फ्रॉम फार्मर्स फैमिली. तो अपने मम्मी पापा को भी हम सपोर्ट करते थे. और इंजीनियरिंग तक के मैंने वो काम किया है एग्रीकल्चर का. वाह. तो शुरू से ही हम लोग की फार्मर्स की फैमिली है. और उसके अलावा हमारा कोई दूसरा इनकम नहीं था उस टाइम. तो शुरू से एक फार्मर के रूप में, फार्मर के बच्चे के रूप में काम किए हैं. और ऐसा बचपन था. और थोड़ा
उस टाइम के हिसाब से गांव में, अगर जहाँ पे ट्यूशन नहीं है, कोचिंग नहीं है, उस टाइम के हिसाब से मैं काफी अच्छा बच्चा था, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक था। बट मुझे मैं भी क्रिकेट वही बहुत पूछने पसंद था, वाला तो था कि मतलब स्कूल में आप शैतानी शैतानी बच्चे से नाम के जाने जाते थे या फिर एकदम शांत और एकदम स्टूडियस? एक्चुअली मैं शांत था, बट बैक बेंचर थे हम लोग बहुत। अच्छा, और ओके। सबसे ज्यादा मतलब अगर बोलना चाहिए कि सबसे लेट आते थे हम लोग क्लास में। तो लेट कमर्स के नाम से हम लोग को बहुत जानते थे। मैं और मेरा एक दोस्त है अभिषेक, तो जो हमेशा या तो कभी वो लेट करेगा या मैं लेट करूंगा, तो या हम लोग लेट हो जाते थे ऐसे, मे बी मोस्टली क्रिकेट खेलने के चक्कर में लेट होते थे हम लोग। वाह, क्या बात है। तो क्रिकेट के लिए सब माफ पैशन होता था है वैसे क्रिकेट भी, का। घरों में चल जाता है। हाँ, माँ बाप से कभी कभी चपेट पड़ जाती थी हमें भी कि क्रिकेट के लिए क्यों इतना टाइम ये कर रहे हो, बट वो एक अलग मजा रहता था। राइट, स्टिल मुझे अभी भी टॉन्ट किया जाता है कि अगर तुम अगर क्रिकेट नहीं खेले होते तो तुम्हारा और अच्छा हुआ होता 12th में। तो तो एट दैट टाइम आई गॉट 92% इन 12th, वाह। बट स्टिल माय पेरेंट्स आर सेइंग लाइक दैट वो होता तो तुम टॉप 10 में होते, बट मुझे उससे अभी आज तक कोई मतलब नहीं हुआ है, ना कोई फर्क पड़ा आई है मुझे उससे। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। ओके। एक आपका एक अदर देन व्हाट यू हैव अचीव्ड नाउ, आपका एक अलग और दूसरा एक, आई थिंक इट वाज लाइक अ ड्रीम टू यू, इट वाज अबाउट एयरफोर्स। एयरफोर्स के बारे में आप जरा बताइए, आपका वो क्या, व्हाट वाज योर ड्रीम, क्या सपना था वो? एक्चुअली में मुझे नहीं बोलना चाहिए, पहले मॉम का मेरा विश था कि वन ऑफ आवर चिल्ड्रन, कोई भी एक बच्चा डिफेंस में जाए। और मुझे डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। इट्स नॉट अबाउट एयरफोर्स, और भी जैसे हमारे यहाँ आर्मी है, इंडियन आर्मी है, नेवी है, तो मैं बहुत पैशनेट था डिफेंस को लेके। ओके। सो आफ्टर 12th, आफ्टर स्कूलिंग, मैंने कुछ एग्जाम्स दिए, एयरफोर्स के एग्जाम मैंने पहले दिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। देन सेकंड अटेम्प्ट जब सेलेक्ट हुआ, तो मैं फोर्थ सेमेस्टर में था इंजीनियरिंग के, व्हेन आई गॉट फर्स्ट कॉल लेटर। ओ। तो मुझे इंजीनियरिंग छोड़ के जाना पड़ रहा था। और क्योंकि एक फार्मर फैमिली की नीड होती है कि आप पहले फैमिली को सपोर्ट करो। सो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि लाइक मेरे को इंजीनियरिंग छोड़ना है। और उस टाइम मैकेनिकल इंजीनियर की वो भी पोस्ट थी, एयरमैन। तो तब मैं ज्वाइन करने के लिए चला गया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस टाइम एयरफोर्स मास रिक्रूट कर रहा था। तो जो पहले रिक्रूट किए थे उनको पहले उन लोगों को पोस्टिंग दी है। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ में मैं टॉप 15 में था। बट ये हुआ कि हम लोग की बारी नहीं आई छत्तीसगढ़ की, लाइक ओह। मध्य प्रदेश पूरा रिक्रूट हुआ। तो देन आई कैम बैक, व्हेन आई गॉट सेकंड कॉल लेटर, आई वाज इन 6th सेमेस्टर। So I decided like I have to complete my college. I will join defense services after my graduation. ओके। और उसके बाद मैंने काफी कुछ प्लान किया था। सीडीएस भी मेरा उसके बाद क्लियर हुआ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होती है। वाह। एक्सीडेंट से पहले, बिफोर एक्सीडेंट, एसएसबी था, एक आर्मी का एसएसबी था मेरा, ओके। टेक्निकल पोस्ट के लिए, मे बी सिविल इंजीनियर के लिए। सो मेरा पूरा ध्यान डिफेंस में ही था, मतलब इवन आफ्टर ग्रेजुएशन एज ए सिविल इंजीनियर बनने के बाद भी मैं डिफेंस में ही जाना था। तो एक अलग प्राउड होता है, एक अलग फीलिंग है डिफेंस में जाना, तो बिल्कुल वैसा बिल्कुल। मेरा वो था। नहीं, सही बात है। आ, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जून 4, 2014, बिलासपुर से बलौद का वो सफ़र, आई थिंक दैट डे मस्ट बी स्टिल इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, बट उस दिन के बारे में आपकी, व्हाट डू यू रिमेंबर ऑफ दैट डे नाउ? एक्चुअली मैं आई हैड कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन 2050, आई थिंक मई 19 को हम लोग का लास्ट फेयरवेल हुआ था, तो कॉलेज हम लोग छोड़ के गए थे। मैं कुछ दिन रेस्ट करना चाह रहा था, फिर मैं घर आया था। बिलासपुर से बालोद का नहीं है ये, बालोद से बिलासपुर का सफर है। मैं आया था, और कुछ दिन रेस्ट किया, मैं फैमिली से मिला, फ्रेंड से मिला। तो थोड़ा मैं चाह रहा था कि एग्जाम से पहले थोड़ा रेस्ट हो जाए, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स में बहुत सारे बर्डन्स रहते हैं, वाइवा बिल्कुल। एंड ऑल। तो मैं चाह रहा था थोड़ा रेस्ट करूं, कुछ दिन स्पेंड किया। फिर मैं वापस जा रहा था रायपुर टू, जब बालोद हम जाते हैं, बालोद तक की ट्रेन नहीं है। तो रायपुर से मेरे को बिलासपुर जाना था, एंड जो इंटरमीडिएट स्टेशन पड़ता है भाटापारा। अच्छा। तो 4 जून की बात है, जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन मेरा बैग गुम गया। आई लॉस्ट माई बैग, एंड आई ओके। सर्च टिल 12 p.m. एंड आई गॉट माई बैग। एंड देन इवनिंग
I started my journey from train Amarkantak Express from Raipur to बिलासपुर। बिलासपुर। उस दिन बहुत गर्मी था और मैं शुरू से एथलीट हूँ, बहुत रन करता था, क्रिकेट खेलता था, तो मुझे कभी वैसा फील नहीं हुआ था सफोकेशन टाइप, जिस दिन उस दिन हुआ था। ट्रेन में कोई पानी नहीं था और जिस टाइम जब वो हुआ तो लोग जब हॉकर्स आते हैं जो पानी लेके, वो भी खत्म हो गया, तो मुझे नीचे उतरना पड़ा था। और जब ट्रेन की जब वो हॉर्न बजी तो मैं चढ़ रहा था और समहाउ किसी ने शायद कुछ ऑयली फूड खाना खा के उसमें हैंडल में रखा था, सो हैंडल वाज स्लिपरी। और जब मैं उसको पकड़ा तो मेरा हाथ जो है, राइट हैंड है, फिसल गया और ट्रेन स्लोली स्लोली मूव हो रही थी। तो फिर मेरा लेग जो है उसमें फंस गया, लाइक प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में। So somehow the flagman in last bogie saw me like and then he pulled the chain and ultimately ये हुआ कि मैं ट्रेन रुक गई और मैं वहां पे पड़ा हुआ था। और एनी हाउ वहां पे आरपीएफ के स्टाफ थे, वो काफी लोगों ने हेल्प किया और बाकी सारी चीजें हुई। हाँ। सो ड्यूरिंग दैट उस दुर्घटना या हादसे के बाद जो इमीडिएटली जो उसके बाद का जो समय होता है, हाउ डिड यू डील विथ इट? आई मीन, आपके साथ हु वॉज योर सपोर्ट? वॉज योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, या और कोई था, या वर देयर ऑल्सो पीपल जिन्होंने आपको राइट ऑफ कर दिया था? एक्चुअली मैं उस टाइम कोई नहीं था मेरे साथ, अकेले में ट्रैवल कर रहा था। और इमीडिएट आफ्टर एक्सीडेंट मुझे रियलाइजेशन हो गया था कि आफ्टर फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या चीजें होने वाली है। बिफोर दैट एक्सीडेंट लाइक जो हमारा कॉलेज जो है जीसी बिलासपुर, वो ऑन द वे है बाईपास में। ओके। सो मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस देखे थे कॉलेज के, अपने सीनियर्स के, जूनियर्स के। सो इमीडिएट जो माइंड काम करता है आपका, तो जो प्लानिंग होती है आपकी, जी। सो मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक मैं देख के समझ गया था कि मेरा लेफ्ट लेग गया, मतलब लाइक आफ्टर एक्सीडेंट मुझे रियलाइजेशन हो गया था कि वन लेग एम्प्यूट होना ही है। राइट लेग कंडीशन एकदम सही था एंड बाय लक बोलना चाहिए कि वहां पे एम्बुलेंस रखा हुआ था इमीडिएट, तो मुझे ज्यादा लोगों ने देखा नहीं। आफ्टर एक्सीडेंट जस्ट मैंने फोन निकाला अपना और तुरंत उन लोग पूछे तो उनको कॉल करके मैंने बताना स्टार्ट किया अपनी फैमिलीज को। और उस टाइम आरपीएफ थे, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होते हैं। तो बट एक ये भी हुआ कि उन लोगों ने काफी देर तक इंक्वायरीज, लाइक हाफ एन आवर पूरे इंक्वायरीज में निकाले। सो एट दैट टाइम बिलासपुर वाज जस्ट 25 किलोमीटर एंड रायपुर वाज ऑलमोस्ट लाइक 80 किलोमीटर्स। सो बट बिलासपुर में ट्रीटमेंट नहीं था, तो मुझे वापस रायपुर लेके आना था। सो एट दैट डे two accident happened, one train accident and second ambulance accident road. ओ डियर। Just before 15 kilometer my ambulance got accident, like गाय सामने आ गई तो ब्रेक लगा, तो जो मेरा लेग जो काफी ज्यादा इंजर्ड था वो थोड़ा दूर छिटक गया। तो वो कंप्लीटली वो बहुत बैड लक डे था उस टाइम, ऐसा लगा। हाँ, बट अभी ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता नहीं है, लाइक जो हुआ अच्छा हुआ। सो ऐसी चीजें हुई उस टाइम। मैंने अपने जो मेरे नाना जी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त के डैडी हैं, तो मैं पूरा होशो हवास था। और मुझे एक चीज का रियलाइजेशन था कि अगर अगर मैं बेहोश हुआ तो मे बी मैं शायद ना बच पाऊं या मैं अपने आप को सपोर्ट ना कर पाऊं। ओके। तो एम्बुलेंस के स्टाफ थे और पूरे ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में मेरे दोस्त लोग और मेरी फैमिली साथ में थे, तो वो सफर मेरे लिए काफी आसान हो गया। हाँ। अब एक तो हुआ जो फिजिकल ट्रॉमा जो होता है, या फिर जो शारीरिक आपको जो तकलीफ होती है, बट उसी समय उन चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए जो मानसिक एबिलिटी, जो मेंटल एबिलिटी लगती है, हाउ डज इट कम? व्हाट आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली मैं आफ्टर एक्सीडेंट जो पहला चीज होता है, जो एक आई थिंक लोअर मिडिल क्लास या फॉर्मर्स की फैमिली डिसाइड करती है, लाइक आई एम द ओनली होप ऑफ माय फैमिली। सो उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि बहुत सारी चीजें, लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे अब आगे की। तो लाइक माय माइंड वाज लाइक अगर अगर आप एक सोच दो सोच एक साथ अगर आपके दिमाग में चलता, मेरे 1000 मतलब 1000 टाइम ज्यादा रन कर रहा था वो। तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि पूरे एम्बुलेंस में, मतलब इवन उसके रास्ते तक के, और जब तक कि मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे हॉस्पिटल में,
लाइक वो वैसे ही चल रहा था कि जो थॉट्स आ रहे थे बहुत अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आ रहे थे, इवन करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके। लाइक आफ्टर एम्बुडेशन, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन था कि होगा, तो काफी टफ था वो। और मैं शुरू से बोलना चाहिए मुझे, मैं सेक्रेट का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। सेक्रेट जो रोंडा ब्रायन जो है, रोंडा ब्रायन का जो बुक है, जी, बहुत बढ़िया तो बुक है। मैं लास्ट 4 ईयर से उसको प्रैक्टिस कर रहा था। सो वो जो चीज है मुझे काफी ज्यादा मतलब इफेक्ट किया, और मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट बहुत ज्यादा रहा। लोग जब बोलते हैं मुझे कि कैसे उस टाइम ये चीजें कर ली और कैसे तुम इवन हॉस्पिटल में भी हंसते थे, तो वो उसका इम्पैक्ट था। और उस टाइम काफी सारे लोग आते थे जो आपको लाइक थोड़े सिंपथाइज करने की कोशिश करते हैं, लाइक वो चीज बहुत पसंद नहीं आती आपको, बट एट द बिल्कुल एंड नहीं। मेरे को ये था कि मुझे और आगे बढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्रिपरेशन करना है। तो मैंने वो स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दिया था हॉस्पिटल में ही। और एक पॉजिटिव डायरेक्शन होता है कि लाइक कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई फाइंड द एवरी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ऑन गूगल, एंड इसके बाद लाइव क्या होगा, कौन से पुट आते हैं, लाइक तो मैंने उस पे ज्यादा फोकस किया शुरू से। तो हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा इसलिए इजी हुआ। करेक्ट। सो इन द रिकवरी टाइम, यू मेंशन्ड अबाउट, आपने अभी जिक्र किया कि आपको अलग अलग फुट के फीट के बारे में आपने रिसर्च वगैरह किया। तो हाउ वाज दैट, हाउ डिड दैट चेंज? आई थिंक यू स्टार्टेड ऑफ विद द जयपुर विच इज द नॉर्मल और मोर फेमसली नोन फुट विद एवरीबडी, and then it moved on to some very very advanced prosthetics. जब रिकवरी की बात आती है तो एक चीज मैंने और बोला कि उस टाइम लाइक जब 95% लोग आपको सिंपथाइज करने की कोशिश कर रहे थे, बट उस टाइम मेरी फैमिली ने और फ्रेंड्स ने कभी वो इंसिडेंट के बारे में आज तक नहीं पूछा। दे नेवर आस्क्ड मी अबाउट दैट इंसिडेंट। सो Awesome. ये एक बड़ा प्लस पॉइंट उनको था मेरे उन लिए। उन सबको थैंक यू कि बिकॉज ऑफ देम यू आर लाइक दिस टुडे, लिटरली। वाह। हाँ, और 5 मेजर सर्जरी हुए उसके बाद। जिस दिन जब लास्ट डेट चल रहा था, तो लाइक डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी के कारण मुझे एक चीज था कि पहला लेग का मैंने आपको बताया कि एम्प्यूट हुआ जी था, जी। और दूसरा लेग जो है राइट, वो ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर नेग्लिजेंस के कारण सेकेंड लेग जो राइट लेग है वो एम्प्यूट करना पड़ा था आफ्टर 26 डे। तो और उसके बाद भी डॉक्टर नेग्लिजेंस के कारण, प्रॉपर फिजियोथेरेपी और थोड़ा मूवमेंट नहीं होने के कारण, मेरा जो लेफ्ट लेग है वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री बेंड हो गया था। तो जब मैंने ये सारी चीजें जब गूगल मैंने कर रहा था, तो मैंने काफी सारी चीजें देखी। तो बिफोर प्रोसेसिस आपको अगर फिटमेंट कराना है तो आपके लेग मसल्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए जी कि आप प्रोसेसिस पहने, क्योंकि इसे प्रोसेसिस पहनने से नहीं होता। आपके लेग मसल्स अच्छे होने चाहिए ताकि आप अच्छे से चल सको, नी जॉइंट मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो मैंने जयपुर लेग से स्टार्ट किया। जयपुर लेग बेसिकली एसडीपी मटेरियल होता है, और उससे कास्टिंग करके नॉर्मल बना देते हैं। वो बहुत लाइट वेट होता है और बहुत कॉमन है, बट उसकी एक लिमिटेशन है कि वो उसमें आप हायर रेंज की एक्टिविटीज नहीं कर सकते। लाइक आपको जॉगिंग करना है, ऑफिस जाना है, जी। अगर आप सीढ़ी चढ़ना है, या आपकी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। तो फुट अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि 1 से 4 तक के अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स हैं कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने बाद में स्विच किया ऑर्थोबॉक, जो मेरा नया प्रोसेस है। सो ऑटोबॉक का ऐसे है कि उसके बाद जब मैं नागपुर सेंटर में था, तो उन लोगों ने फिटमेंट किया। तो मेरा जो फिटमेंट है प्रोसेस का बहुत चैलेंजिंग था कि लाइक उसमें नी जॉइंट मूवमेंट नहीं था। तो उसके पहले ही मैंने घर में कुछ कुछ वर्कआउट किया था, और उसमें नी जॉइंट मूवमेंट का मतलब इनहेंस करने की कोशिश किया था, जो काफी मतलब 20 डिग्री तक मैंने 10 से 20 डिग्री तक अपना नी जॉइंट मूवमेंट एक्सपांड कर लिया था मैंने। क्योंकि रूरल एरिया में मतलब ऐसा होता है कि आपको फिजियोथेरेपी तो मिल नहीं सकती, और उस टाइम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 lakhs के आसपास हम लोग का एक्सपेंडिचर हो गया था हॉस्पिटल में। सो हमारे लिए उस टाइम टफ था। और मेरा जो प्रोसेसेस का भी अरेंजमेंट मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ही क्राउड फंडिंग से किया था। वाह। सो माय फ्रेंड्स एंड माय कलीग्स, लाइक कॉलेज मेट, सीनियर जूनियर, सबने और टीचर्स ने मिलके सारे लोगों ने अरेंज किया था ये सब चीजें। तो ऑटोबुक में मैंने फिर स्टार्ट किया। तो फिर डे टू डे जो लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी हो गई, मे बी जॉगिंग से लेके ऑफिस से लेके बाकी सारी चीज़ें।
स्टार्टिंग में इंजरीज आई क्योंकि मेरा जो वो लेफ्ट वाला लेग है जो उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ग्राफ्टेड स्किन है। तो स्टार्टिंग में वो बियर नहीं कर पाता था जो प्रेशर होता, तो प्रेशर सोर्स जनरेट हो रहे हैं, ओके। तो काफी ज्यादा मतलब उस टाइम इंजरीज आती थी और फिर कम बैक करना होता था। मैंने एक कविता भी लिखी है जिसको मैं, आप जब बोलेंगे तो मैं उसको सुनाऊंगा मैं जी जी, हम इसके बिल्कुल ऊपर। सुनेंगे आपकी कविता। मैं सबको सुनाना चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक हाँ, एक फेसबुक इवेंट पे शायद आपने ये कविता कहीं पर पढ़ी थी, अगर मैं गलत नहीं राइट हूँ। राइट राइट So I राइट, मैंने really want फेसबुक में everybody शेयर to किया था। listen to it, but yes, we'll come towards it towards the end. But हाँ नहीं तब तक आप, so here I want to mention about Autobox. So the reason have come to know about Chitra Sen is because of Autobox. The Shraddha Pednekar, who works with Autobox, happened to mention to me about him. Autobox is in the business of providing prosthetics, and it does some amazing work with some amazing people who are literally now living a so-called, as we call, normal life. I do not think there is anything abnormal with anything which others do also, but people call it as normal life. But they're able to carry on with their lives the way they would have wanted to, whether they did not have one hand or two limbs or anything. So Autobot does some phenomenal work in this field, and here we have somebody who has benefited greatly from it. And I think, as he himself said, it was a challenge for even Autobot people to develop prosthetics for him because of the conditions which he mentioned. But I think because of what they have done, we will now speak about certain things which Chitra Sen has been able to achieve because of all this. And the first point I want to ask him about, pehla vishay, is about marathons. How did you manage to run marathons? Tell me that first. मैराथन कैसे है जो लास्ट जब हमने प्रोसेसेस, जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जब मैंने सर्च किया कि ज़्यादा मटेरियल्स नहीं है इंटरनेट पे, या मुझे लोगों से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन कैच किया वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट गूगल से किया। मुझे रियलाइज हुआ कि इसको अवेयर किया जाए और बाकी लोग को भी लाया जाए, तो एक मैराथन की टीम बनी। और उसके बाद ऑटोबुक ने भी सपोर्ट किया इसमें। तो हमने अभी तक 3 मैराथन मैंने कंप्लीट किया है, Okay. जिसमें हमारा टारगेट होता है कि हम एनी हाउ उस जो पॉइंट है उसको हम कंप्लीट करें। इट्स नॉट अबाउट लाइक विनिंग, तो Correct. उसमें विन का कोई बात नहीं होता। वी माइट आई माइट बी स्लो बट आई विल कीप माई फ्लो। तो ऐसे एम के साथ हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक 3 मैराथन मैंने किए हैं। Wow. इसके बाद एक्चुअली में मैराथन में आपको स्पेशल ब्लेड रनिंग लेग की नीड्स होती है। G. सो मेरे पास वो फुट नहीं है, तो बट स्टिल हम वो अभी तक मैराथन किए हैं। अगर वो ब्लेड रनिंग लेग्स आएंगे तो मे बी हम लोग 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स भी करेंगे। Wow. सो इट डिपेंड्स अपॉन फुट, लाइक हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइप के फुट हैं। G. लाइक आप रनिंग वाले फुट में आप डेली यूज नहीं कर सकते, तो उसका भी एक लिमिटेशन है। Correct. Correct. Very राइट। true. Wow. You did not. Marathon is just one part of his entire achievement. One of the biggest achievements which everybody knows or everybody has heard about is mountaineering. And two big achievements which I consider are the biggest challenges on the human body is reaching peaks which are of real considerable challenges. One of them is Mount Kilimanjaro, and the other is the highest peak in Australia, which is Kosciuszko. And he has यस। been able to scale both these peaks. So माउंटेनियरिंग, ये दिमाग में भी कैसे आया कि माउंटेनियरिंग करने की चाह, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, एंड देन द होल ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर दैट? माउंटेनियरिंग का ऐसे कि स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं था कि माउंटेनियरिंग करना है, बट ऐसा था कि कॉलेज टाइम में ट्रेकिंग हम करते थे, अलग अलग ट्रिप्स में जाते थे, जंगल ट्रेकिंग करते थे। तो वो आप जब हम जो पहले रहते हैं वो आप हमेशा बनना चाहते हैं। आई ऑलवेज लव टू बी फ्रीडम, सो आई ऑलवेज वांट टू बी सेम एज लाइक प्रीवियस वन। So I started trekking in local mountains of Chhattisgarh, Manpat, and I do several trekking programs and ran several trekking programs. And then I started trekking in Himachal Pradesh, ओके। and I complete up to 14,000, 14,000 फीट तक मैंने वहाँ पे ट्रेकिंग किया। उस पे रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग होता है, रिवर क्रॉसिंग होता है, जी। वो भी साथ में ट्रेनिंग किया मैंने वहाँ पे।
तो जब मुझे ये चीज देखा कि 14,000 फीट तक मैं इजिली आप क्लाइंब कर ले रहा हूँ वो बिना प्रॉब्लम के, क्योंकि क्या होता है जब हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं थोड़ा आपको डिजीनेस होता है, सांस लेने में जी। प्रॉब्लम होने लगता है, एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगता है। तो वो मुझे नहीं हुआ। और वो जो 10 दिन का प्रोग्राम था उसमें 7 दिन प्योरली ट्रैकिंग था, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 72 किलोमीटर्स का कवर किया मैंने ट्रैकिंग में। तो वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और उसके बाद देन किलीमंजारो प्लान हुआ, और उस बीच में कुछ कुछ ट्रैकिंग किए काफी। और किलीमंजारो के पहले ट्रेनिंग काफी कुछ करना पड़ा, क्योंकि लाइक माउंटेन्स में आप किसी के भरोसे नहीं जा सकते, आप माउंटेन में खुद के भरोसे जाते खुद हैं। के भरोसे है, बिल्कुल। तो हाँ, और लेफ्ट लेग मेरा थोड़ा वीक वीक है अभी भी, तो उसमें नी जॉइंट मूवमेंट पहले कम था। तो स्टिल उसमें काफी वर्क किया मैं रोज, लाइक रोज उसमें माउंटेनरी शूज पहन के मैं ऑफिस जाता था, लाइक रोज सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मेरे अपार्टमेंट जो है उसमें रोज लास्ट सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसमें लिफ्ट यूज नहीं कर रहे हैं। फिर जिम भी कर रहे हैं तो रोज उसमें 5 किलोमीटर का रन कर रहे हैं, उसमें अलग अलग लाइक इंक्लाइन करके रन कर रहे हैं, प्लेन करके रन कर रहे हैं, जो तो अलग अलग स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से हमने प्रिपेयर किया, योगा किए बहुत सारे। तो मेन उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ तो मेरे पास है, बट फिजिकल में काफी कुछ करने की जरूरत थी। जी। और जो किलीमंजारो में काफी कुछ काम आया। किलीमंजारो के बारे में सबसे एक यूनिक बात यह है कि वहां पे वोल्केनिक माउंटेन है सबसे फर्स्ट। और वहां पे जैसे मैंने हम लोगों ने वो ऑलमोस्ट 7 डे का वो क्लाइंबिंग है, बट हमारे पास बजट प्रॉब्लम था, तो हमने जो है 5 दिन का रूट सेलेक्ट किया। वाह। जो और और चैलेंजिंग, क्योंकि 5 दिन के रूट में क्या होता है, अब सडन आप हाइट गेन करते हैं तो बॉडी आपका साथ नहीं देता, बिल्कुल, आप हाँ। प्रॉपर एक्लेक्टाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उसका सक्सेसफुल रेट बहुत कम है। बट स्टिल हमने वो रूट सेलेक्ट किया क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो आप 5 दिन में 5 अलग अलग क्लाइमेट जोन क्रॉस करते हैं। लाइक एवरी डे यू हैव टू क्रॉस न्यू क्लाइमेट जोन एंड न्यू वेजिटेशन जोन। वहां पे जब शुरू में क्लाइंब करेंगे तो बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके बाद फिर छोटे पौधे हैं, फिर घास वाला जमीन है, फिर उसके बाद वॉल्केन्स है। तो बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाता है, तो ये जी। मेजर प्रॉब्लम होता है। तो वो चीजें रही। और लास्ट में बोलना चाहिए जो समिट डे होता है, समिट डे में ये चीज खास रहा कि उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि साइकोलॉजी काफी ज्यादा मैटर करती है। तो जब हम नाइट में क्लाइंब कर रहे थे तो वोल्केन्स माउंटेन में क्या होता है कि वो राख जो रहते हैं, हाँ, हाँ। और राख के साथ उसके रॉक के छोटे छोटे टुकड़े। और आप जब आपके दोनों पैर नहीं हैं, और आप मैं मतलब ऑटोबॉक में भी मैं बेसिक टाइप का फुट यूज कर रहा हूँ। जी। ऑटोबॉक ने मुझे सेकंड पेयर का फुट दिया था ताकि अगर कुछ डैमेज होता है तो अपन उसको यूज कर लें। तो बट क्या होता है, वो उतना प्रॉपर एनर्जी रिटर्न आपको मिलता नहीं है। जब आप इंक्लाइन में चलते होते हैं तो वो आपको पीछे ढकेलता है। तो क्लाइंबिंग करते टाइम आपको दोनों चीज पे मेहनत करना होता है। लाइक आपको पुश भी करना है और अपने आप को प्रिवेंट होने से बचाना है कि प्रिवेंट आप नहीं पीछे करना, ना चले वाह। जाएं। और एट द सेम टाइम आपको जो एनर्जी है शुरू में वो लास्ट तक के बना के रखना है। तो क्या होता है, हर स्टेप में वो राख के कारण फुट जो है स्लिप करने की कोशिश करता है। तो जो ट्रैकिंग पोल रहता है उसमें काफी कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपको लेग स्ट्रेंथ भी चाहिए, शोल्डर स्ट्रेंथ भी चाहिए, और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप आपका बोलना चाहिए आप अपने गोल को लेके आप उतने पैशनेट नहीं है तो डेफिनेटली आप वो क्लाइंब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा जो लाइक लास्ट कैंप से वापस हो रहे थे बिना क्लाइंब कर किए। तो वो काफी चैलेंजिंग हो जाता है। रात में क्लाइंबिंग काफी आसान होता है, बट दिन में जब दिखता है टारगेट बहुत नजदीक है, तो क्योंकि आप चलते रहते हैं वहां पे जिग जैग है, तो लाइक 1 घंटे में आप 100-200 मीटर चल रहे हैं, लास्ट के जो 200 मीटर है मैंने 3 घंटे में किया। तो वाह। ये मतलब आप देख रहे हैं कि नजदीक में है टारगेट, बट आप वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लग रहा है टाइम क्योंकि लग वो जाएगा। रास्ता ही वैसे है जिग जैग। और आप बाकी माउंटेनियर से थोड़ा स्लो हैं। तो ये थोड़ा मतलब माइंड गेम बहुत रहता है। जी, तो बिल्कुल। बहुत पुश करना पड़ता है अपने आप को। और बट अल्टीमेटली वो अचीव हुआ। और वहां से फिर लाइक सब लोग लाइक पहुंचते ही बहुत चीयर करते हैं। मैं जाके बस वहां पे एक रॉक में बैठ गया। और फिर मैंने मेरे को आसपास पूरे मेरी जो 5 साल की जर्नी थी वो मैंने रिवाइंड करना स्टार्ट कर दिया। लाइक वो पूरे फ्लैश हो रहे थे मेरे सामने में, लाइक मैं कहाँ था और लाइक कहाँ चला गया। तो किलीमंजारो बहुत टफ था। और उससे लोग हमेशा क्लाइंबिंग की बात करते हैं, बट क्लाइंब करके नीचे उतरना भी बहुत बड़ा टास्क रहता है।
मैं वही पूछने वाला था आपसे अभी। आई मीन ऊपर चढ़ने के लिए आपने पूरी हिम्मत जुटा दी, सब कुछ कर लिया, उसके बाद टू कम बैक टू द ग्राउंड। और क्लाइंबिंग में क्या होता है, जब उतरना काफी मुश्किल होता है, लाइक इवन प्रोसेसेस के साथ, कि आपको वो गिराने कुछ लाइक थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स में कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। तो उतरना काफी मुश्किल है क्लाइंबिंग के बदले, क्योंकि क्लाइंबिंग में आप एनर्जी लगा पुश करके चले जा सकते हैं। और जब आप 10 घंटा 12 घंटा प्रोसेसेस यूज करते हैं, तो लाइक स्वेटिंग के कारण अंदर में बोलना चाहिए प्रोसेसेस के अंदर में लाइक एक अलग लेयर टाइप का ऑयली टाइप का जनरेट होता है। जी। ऐसा लगता है कि वो ग्रिपिंग वहां का खत्म हो रहा है। तो एक ओ। जो नॉर्मल लेग है, जो ओरिजिनल लेग है, और प्रोसेसेस के बीच में एक ऐसा लगता है गेप टाइप का फील होता है आपको। तो वो हाँ। काफी मुश्किल हो जाता है फिर उसमें, और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज है ये। तो किलिमांजारो समिट हुआ, और मैंने वहां से लाइक प्लास्टिक फ्री का मेरा एम था वहां पे मैसेज देने का, और इंक्लूजन का एक मैसेज था जो मैंने वहां से फॉरवर्ड किया था। करेक्ट। कोजियस्को जो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, उसके लिए ये था कि वो थोड़ा आसान है इसके लिए, वो 2 दिन का है, उसमें कुछ है नहीं वहां पे। बट वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बोलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है कोजियस्को। तो उसको किया था। बट एक चीज मैंने लर्न किया वहां पे, मैंने कोजियस्को को बहुत आसान ले लिया था। तो जैसे हम वहां पे कुछ भी जब स्टार्ट किए ट्रैकिंग, तो वहां पे बहुत हीट था। लास्ट ईयर लोग मतलब ऐसे ही गए थे, मतलब हमारे पास स्वेट शर्ट कुछ भी नहीं थे। आधे घंटे बाद वहां पे विंड चलना स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा, लाइक 60 किलोमीटर पर आवर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही है, और ओ बॉय। हवा आ रहा है कान में। तो वो आसान है, बट वो काफी मुश्किल हो गया हमारे लिए। करेक्ट। एक और गलती किया कि मैंने लाइक जब मेरा प्रोसेस है एज ए डबल एम्प्यूटी, क्या होता है कि आपको दोनों लेग को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप माउंटेन्स में होते हैं या आप डे टू डे जैसे आपकी एक्टिविटीज बढ़ते जाती है, तो श्रिंकेज बहुत होता है सॉकेट में। नॉर्मल लीम आपका जो रहता है वो श्रिंक होते जाता है। श्रिंक होता जाता है, तो वहां पे क्या वाह। ओ हुआ, बॉय। मुझे पहुंचते सब समिट की टाइम आई, तो मैंने दोनों लेग को मैंने क्या कर दिया था, दोनों को बराबर कर दिया था। और क्या हुआ, मेरा राइट लेग ज्यादा श्रिंक हो गया, लेफ्ट लेग श्रिंक नहीं हुआ। ओ। मैंने एक्स्ट्रा पैडिंग भी नहीं रखा था, कुछ लेयर रखे थे, बट वो काफी टफ हो गया मेरे लिए, और लेग्स में इंजरीज आ गई। तो कई बार खुद को समझना होता है प्रोसेसेस को। तो माउंटेन से प्रोस्थेटिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कोजियस्को समिट हो गया, और आते टाइम काफी मुझे परेशानी हो गई, क्योंकि उतरने के टाइम में क्या होता था कि लाइक एक लेग का हाइट ज्यादा है, एक लेग का कम है थोड़ा, करेक्ट। और दोनों बायलैटरल ली में तो कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। सो ये प्रोसेस के साथ प्रॉब्लम्स है जो खुद को समझना होता है। और उसके साथ आपके पीएनओज जो रहते हैं उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि आप फीडबैक नहीं देंगे प्रॉपर, तो वो भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रिजल्ट नहीं पाएंगे। दे लाइक पाएंगे। सही ऑटोबोक बात। अगर कर रहा है तो वो भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो फीडबैक बहुत जरूरी होता है। वाह। ओके। सो मैराथन, माउंटेनियरिंग, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू हैड टू डू स्काई डाइविंग। आपने आगे जाके स्काई डाइविंग भी कर ली। हाँ जी, 14,000 अस्सी फीट, हाउ मच वाज इट? 40,000। ये कैसे दिमाग में आया? हाँ, एक्चुअली में ये प्लान में बहुत समय से था। जब हमने कोजीएस को कंप्लीट किया था, तो हमारा वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे मिलने का प्रोग्राम था। बट उसकी अपॉइंटमेंट 3 बजे के आसपास थी, और हम फ्री थे काफी। तो हमने आसपास चीजें एक्सप्लोर करने की देखी, और देखा कि वहाँ पे स्काई डाइविंग होता है। तो मैं गया वहाँ पे, और स्टिल मैं उस ग्रुप में मैं नहीं था कि मैं वहाँ से जंप करूंगा, मैं भी जाऊंगा ऐसे करके। बट काफी देर से मैं आधे घंटे से मैं वहाँ के स्क्रीन में वीडियोस देख रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे करूंगा इसको ऐसे करके, क्योंकि लाइक डिसाइड करता कि प्रोसेसेस के साथ जाना है, उसके बिना जाना है, करेक्ट। लैंडिंग कैसे होगा। तो बहुत सारे दिमाग में चल रहे थे। बट हमारे साथ मेघा परमार थी जो मध्य प्रदेश की माउंटेनियर है। अच्छा। लाइक मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था, उसने क्वेश्चन कर दिया आपको भी करना है ऐसे करता है, उसने उन्होंने जान लिया कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो वहां पे पूछे काफी देर, उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने कभी किसी डबल एम्प्यूटी या एम्प्यूटी माउंटेनियर को कभी स्काई डाइविंग कराया नहीं था। ओके। सो एक सीनियर लेडी वहां की आई जो पायलट भी थी, तो उसने पूरे प्रोसेस बताया मुझे, और हम दोनों ने काफी डिस्कशन किया। सो लास्ट में डिसाइड हुआ कि मैं प्रोसेसेस के साथ जाऊंगा, और जब जंप के टाइम में मैं उसको निकाल दूंगा। तो वो चीजें हुई, और ये मुझे लगता है कि लाइक जब एम्पुटेशन होता है तो आपको हाइट से बहुत डर लगता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो ग्रेविटेशनल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी की, वो शिफ्ट होकर ऊपर चले जाती है और गिरने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो आपको एक डर रहता है हाइट का। ओके।
और उस हाइट वाले जो फियर को मैंने उस दिन दूर किया था। मुझे लगता है हर किसी को वो करना चाहिए। वो वो अलग ही एक्सपीरियंस है, लाइक शेयर नहीं कर सकता। और अमेजिंग, क्योंकि मैंने अमेजिंग, उस इट वीडियो के वाज कुछ पल देखे जिसमें जब जब आपकी पहली जंप हुई थी तब आपके आंख पूरी तरह बंद थी, एंड देन योर इंस्ट्रक्टर वाज टेलिंग यू टू ओपन अप, एंड देन इट वाज लाइक वाओ। उसकी पूरी वीडियोस है। एक्चुअली शुरू में तो मैं बहुत खुश था जब करते, बट क्या होता है जब आप नीचे आते हैं बहुत, तो बहुत जी। तेजी से आप नीचे आते हैं। वो तो स्लो मो वाला वीडियो था, वो ऑलमोस्ट 1 सेकंड भी नहीं होगा वो जो दिख रहा है करेक्ट। वो। तो उसमें क्या होता है जब तेजी से आप आते हैं, और उस टाइम हल्की बारिश भी हो रही थी, तो वो बहुत प्रेशर पड़ता है इस पे, चेहरे पे और कान पे, तो वो खुलता नहीं है आंख। तो वो जस्ट हाथ को ओपन करने बोल रहा था, और लाइक आंख ओपन करने बोल रहा था उस टाइम। तो वाह। ये थोड़ा सा फियर रहता है जब जंप करते हैं, तो एक आपको अलग ही लाइक थोड़ा आपका हार्ट थोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है, तो एक अलग करेक्ट। फीलिंग होती है। फिर उसके बाद लगता है यार वाह, ये तो मतलब काफी आसान था ऐसा करना। तो मतलब वो आपने चीजें तो थी। मतलब आसानी की परिभाषा ही बदल दी है, क्या आसान है। ओके, तो उसकी डेफिनेशन आपने बदल दिया, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड। मैराथन, माउंटेनियरिंग, स्काई डाइविंग, बास्केटबॉल, पैरा बास्केटबॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल, you literally were responsible for that happening, or how did para basketball come about? जब स्टार्टिंग में जब मैं मैराथन्स के ट्राई कर रहा था काफी ज्यादा, तो मैं ब्लेड रनिंग लेग के बारे में मैं उसमें स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा था। मैंने स्टेट गवर्नमेंट भी काफी जगह अप्लाई किया, बट मुझे कुछ मिला नहीं। बट जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे एक सजेस्ट किया कि लाइक आप पीआरआरसी जो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर है, आप वहाँ चले जाइए। तो वहाँ के जो पीएनओस हैं यहाँ के, उन्होंने रिकमेंड किया वहाँ पे ट्रायल चल रहा है, आप एटलीस्ट एक नया पैरा बास्केटबॉल की जो गेम आई उसको ज्वाइन कर लीजिए। मे बी इन फ्यूचर आप अच्छा खेले तो मे बी आपको स्पॉन्सर्स मिल जाए। Okay. तो मैं वैसे ज्वाइन किया था, मैंने रनिंग के चक्कर में मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्वाइन किया। बट वो गेम ऐसा है कि मुझे वो इंक्लूजन का सबसे मुझे ऐसा लगा कि सबसे बढ़िया माध्यम है वो। लाइक उस गेम में उसकी हाइट से लेके उसकी टाइमिंग से लेके सारी चीजें क्या जो बात कही। नॉर्मल बास्केटबॉल है उसके अकॉर्डिंग है। जी। तो वो मुझे काफी क्लिक किया, मैं सेलेक्ट हो गया, और वो मेरा बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद टीम को आगे ले जाने के लिए कोई और लोग नहीं थे, टीम को सेलेक्ट कर दिए। तो उसके पीछे कोई लोग नहीं थे। फिर मैंने और मेरे कोच है निकलेश सर, उसने स्टार्ट किया कि वो टीम को आगे ले जाने के लिए। फिर अभी तक वो 3 नेशनल हम लोग खेले हैं, मैं स्टेट टीम का कैप्टन भी हूँ, और मैं ही मैनेज कर रहा हूँ बाकी सारी चीजों को। तो ये एक मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स जो यहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ है, स्पेशली पैरा बास्केटबॉल जो है, जी। या पैरालंपिक्स के जो गेम है, हमारे बहुत सारे एथलीट जो हैं बहुत आगे जाना चाहते हैं, बट उनको कुछ मालूम नहीं है। सो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि पैरा स्पोर्ट्स को थोड़ा अवेयरनेस लाने का। तो एक कोशिश है ये जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल है। और हमने एक इंटरनेशनल प्लेयर भी अभी तक छत्तीसगढ़ से गई है। तो अभी तक 3 साल का सफर काफी अच्छा रहा है। Very nice, very nice. And we wish you really all the best. I really hope that this dream also comes true in a bigger way. सो ये सब जो आप एडवेंचर्स ये खुद कर रहे थे, उसके बाद आपने एक गवर्नमेंट के साथ एक एडवेंचर कर लिया, टू एंड लिटरली द मीनिंग ऑफ फाइटिंग फॉर राइट्स ऑफ इंक्लूजन, ड्राइविंग राइट्स फॉर डबल एम्प्यूटीज। प्लीज टेल अस अबाउट दैट, उसके बारे में बताइए जरा हमें। एक्चुअली में ड्राइविंग राइट्स की जब बात आती है इंडिया में, तो काफी जगह है, अच्छे रूल्स तो हैं गवर्नमेंट में, बट बेसिकली लोगों को अवेयर नहीं। इवन आरटीओ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको अवेयरनेस नहीं है। लाइक वो डरते हैं, लाइक अगर मैं इसको अगर ड्राइविंग लाइसेंस दे दूंगा, तो लाइक कल के डेट में अगर ये किसी को ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे ऊपर आ जाएगा। तो एक अंदर से उनके अंदर है। बट बेसिकली हमारा टारगेट ये था स्टार्टिंग में कि जो ड्राइव कर सकता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए। डिसेबिलिटी मैटर नहीं करता है। सो ट्रू। प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, जो ड्राइविंग करता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए। जो ड्राइविंग नहीं करता, क्योंकि आप इंडिया में देखेंगे बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनकी मतलब ड्राइविंग नहीं आती, बट उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो दैट वाज अ मेजर थिंग। हमने काफी टाइम तक मतलब 2 महीने तक, मैंने 2-3 महीने तक कोशिश किया गवर्नमेंट के साथ बात करने का, उसको सुलझाने का। और उससे पहले मैंने 2 साल पहले तक के मैंने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो सारे रख लिए थे, बट आरटीओ ने डिनाई कर दिया सारी चीजों को ओके। कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे कोर्ट जाना पड़ा, वहां पे 1.5 साल करीबन मैंने संघर्ष किया, वहां पे फाइट किया। और छत्तीसगढ़ में सारे जो डिफरेंटली एबल्स हैं, स्पेशली एबल्स हैं, उनको वो ड्राइविंग राइट्स मिला।
और करीबन 6 लाख लोग हैं जिनको डायरेक्ट फायदा मिला इससे। तो और ऐसे awesome. बहुत सारे रूल्स हैं जो लाइक डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। जी जहां तक मतलब मे भी मुझे लगता है, इवन मैं अपने बारे में भी सोचता हूँ, मैं जो आज इतनी बातें कर रहा हूँ कि लाइक इंक्लूजन की बातें हैं, एक्सेसिबिलिटी की बातें हैं, लाइक एट दैट टाइम बिफोर बिफोर एक्सीडेंट मेरा दिमाग भी शायद उस लेवल तक नहीं जाता था। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सेंसिटिविटी की कमी है, अवेयरनेस कमी है। तो इसीलिए बहुत सारे गैपिंग्स हैं, लैक्स है उसमें पॉलिसीज में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके थ्रू भी हम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मे बी आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, लाइक फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में ला रहे हैं, तो आप मे बी 1-2 लोग की या 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग की हेल्प कर पाएंगे आप। बट अगर आप पॉलिसी में चेंज लाते हैं तो आप एक ग्रुप को, बहुत बड़ा एब्सोल्युटली दायरे को आप पूरा कवर करते हैं। तो टारगेट ये भी है कि पॉलिसीज के थ्रू आप लोगों तक पहुंचे। नो एंड आई थिंक बिकॉज ये आपकी जो अभी कोशिश चल रही है और जो आपने अभी कहा कि उस समय अगर आप इस तरह नहीं सोचते या इस तरह सोचते, शायद अभी अभी जिसके साथ कुछ सोच रहा है अभी आज वो गूगल पे चला जाए, तो अगर आपका रिजल्ट सबसे ऊपर आंसू उसे दिखता है, इट गिव्स हिम होप, दैट होप इज देयर विथ हिम टू कैरी ऑन एंड डू समथिंग, एंड दैट होप इज समथिंग विच इज द फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स। पहला पहला जो पुश चाहिए वो वहीं से मिलता है, and I'm glad that you're doing this job right from the policy levels. What are your future plans after this? Actually, my future plan is like 7 summit. I want to climb 7 summits of 7 continents, Wow. like including Everest. इसमें एवरेस्ट भी है जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। I मे do बी not know नेक्स्ट what question to ask you after this. When you have said Everest, there is nothing beyond now to. अभी इसके आगे पूछूं क्या मैं आपसे? Wow, that is amazing. और कोशिश है मे बी और ज्यादा लोग तक रीच कर पाऊं। जैसे आप बोल रहे थे कि वो होप देता है, तो जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए ऐसे करके। एक्चुअली मैं माउंटेन क्लाइंब किया वो सक्सेसफुल नहीं है, बट ये जो चीजें जो हुई है और उसको देख के जब लोग न्यूज या मीडिया में या गूगल करके जो दिखते हैं या मेरे सोशल मीडिया में लोग जाते हैं, तो अगर किसी को होप मिलता है, उसके बाद मेरे को ऐसे ऐसे लोग के फोन आए हैं लाइक कि एक जो रेलवे प्लेटफॉर्म में कोई मोची है, उसके दोनों पैर नहीं है, वो कॉल कर रहा है, तो वो बहुत इंस्पायर हो रहा है। तो ये एक्चुअली में मुझे लगता है ये डेफिनेशन है सक्सेसफुल होने की। लोग अगर आप जो कर रहे हैं उसके थ्रू अगर कोई मोटिवेट, बड़ी बात है। तो कोशिश यही है कि और ज्यादा लोग तक रीच करें, लोगों की हेल्प कर पाए। मे बी जो एम्पुटेशन होने के बाद अवेयरनेस नहीं है, तो मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग को कि जो असिस्टिव डिवाइसेस जो होते हैं और आर्टिफिशियल लेग्स होते हैं उन तक की रीच बढ़े। तो उसके लिए भी बीच बीच में हम ट्राई करते रहते हैं। और Okay. ऑटोबो के साथ बीच में हमने, जब श्रद्धा मैम आई थी रायपुर में, तब भी हमने एक अवेयरनेस कैंप हॉस्पिटल में किया था, क्योंकि डॉक्टर्स को भी मॉडर्न असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे उतना पता नहीं है। तो इस पे काम करना, काफी कुछ काम करना है और यही टारगेट है अभी। Wow. I really wish we had more time to speak with you because it is just amazing to listen आपकी not just आपकी story but आपने उस story से जो दूसरों के लिए करने की भी जो ठान रखी है ना, that is amazing because at times you can live for yourself but to do it for others is a different level of thinking, and I really salute that to each one of you, to you, and it's amazing. You have to tell us. So one thing which I want you to do is, one is your poem, the poem which you have done, which I want you to read out, and what message do you have for everyone here today? पहले कौन सा किया जाए? पहले आपकी कविता. कविता, ठीक है, कविता पढ़ लेते हैं पहले। उसका टाइटल है, चोट तुम बार बार क्यों आते हो, इतना जज्बा कहाँ से लाते हो। तो Wow. ये ऐसा है कि मुझे, मेरा जैसा लेफ्ट लेग बहुत सेंसिटिव है, स्किन ग्राफ्टेड है उसका, और काफी ज्यादा बोनी है क्योंकि डॉक्टर ने उस टाइम नेग्लिजेंस किया है, और मसल्स की जो पैडिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। तो मेरे को फ्रिक्वेंट चांसेस रहते हैं कि इंजरीज हो जाए। तो ऑटोबुक ने काफी कुछ हेल्प किया है इस जर्नी में, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेसेस बनाना भी अपने आप में डिफिकल्ट टास्क था जिसको। और उसके बाद जिस टाइप का मैंने एक्टिविटीज किया वो ऑटोबुक के लिए खुद शॉकिंग है कि मैंने इस टाइप की एक्टिविटीज कैसे कर ली। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बायलैटरल एम्पुटेशन, वो भी अगर आपके दोनों पैर शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट बोलना चाहिए, मेरा एक लेग वेरी शॉर्ट है और दूसरा लेग शॉर्ट है। लेकिन Okay. आपका अगर लेग का लेंथ अगर अच्छा हो तो आपको प्रोस्थेटिक लेग में चलने में भी उतनी अच्छी आसानी होती है, बाकी एक्टिविटीज के लिए आसानी होती है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है।
ओके। तो इंजरीज बार बार आती है और एक सवाल बहुत बार बार घूमता है। तो लास्ट अभी मेरे ख्याल से ये 2 हफ्ते पहले मैंने इसको लिखा है, जब मैं ऑफिस कंटिन्यू कर रहा था। और होता है बहुत कई बार दिमाग लगता है, तो एक कहानी कविता आई जिसको मैंने लिखा है, जी। पढ़ता हूं मैं। चोट तुम बार बार क्यों आ जाते हो, इतना जज्बा कहाँ से लाते हो। चोट तुम बार बार क्यों आ जाते हो, इतना जज्बा कहाँ से लाते हो। तुम जानते हो मैं जिस परिस्थिति से आया हूं, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तुम जानते हो मैं जिस परिस्थिति से आया हूं, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। फिर बार बार क्यों आ जाते हो, इतना जज्बा कहाँ से लाते हो। कभी कृत्रिम पैरों के घर्षण से, कभी पैरों पर, कभी कंधे पर। तुम जानते हो इससे मैं ना कभी रुका हूं ना रुकूंगा। फिर भी बार बार क्यों आ जाते हो, इतना जज्बा कहाँ से लाते हो। होगा लॉकडाउन, अभी इंडिया में लॉकडाउन चला, काफी जी। लोग घर में थे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो उसके ऊपर भी मैंने लिखा है। कई बार होता है कि जब लॉकडाउन होता है और जब मेरे को इंजरीज होती है, तो कभी कभी घर में ही रहना पड़ता है। तो ये लाइन उसके लिए है। होगा लॉकडाउन सभी के लिए अभी, पर तुम्हारे कारण मुझे ऐसे कितने लॉकडाउन से गुजरना पड़ता है। क्या बात है। होगा लॉकडाउन सभी के लिए अभी, पर तुम्हारे कारण ऐसे कितने लॉकडाउन से मुझे गुजरना पड़ता है। कभी कभी मैं तुमसे भी प्रेरित होता हूँ। लाइक ये इंजरीज मैं कई बार डिफीट किया हूँ, फिर भी ये बार बार आ जाता है। तो लाइक इंजरीज मेरे लिए मोटिवेशन है। कभी कभी मैं तुमसे भी प्रेरित होता हूँ, जब चोट के बाद फिर से खड़ा होता हूँ और एक नया मुकाम हासिल करता हूँ। इतने असफल प्रयास के बाद, इतने असफल प्रयास के बाद फिर तुम क्यों आ जाते हो, इतना जज्बा कहाँ से लाते हो। चोट तुम बार बार क्यों आते हो, इतना जज्बा कहाँ से लाते हो। क्या बात है, क्या बात है। वाह। तो ये You रहा know, सर। the best thing about this session is how do you take, I mean, in the entire thing मैंने अभी तक आपसे एक भी बार ऐसे नहीं सुना कि क्योंकि ये हो गया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। एवरी टाइम यू स्पोक अबाउट ये हो गया तो मैंने इसलिए वो किया। आई मीन ये माइंडसेट ही लाना बहुत बड़ा है, विच इज वाई आई वॉन्ट टू टेल what आई वॉन्ट टू सम मैसेज विच यू वॉन्ट टू पास टू एवरी वन। आई नो दिस स्मॉल टाइम इज नॉट गुड इनफ टू गिव अ बिग मैसेज टू एवरी वन, बट दीज ये सबके लिए कठिन परिस्थिति राइट नाउ है। बट फॉर एनीबडी हु इज wanting to go beyond his disabilities and wanting to achieve something, what would you say to them? I think every day is Everest, every day is Kilimanjaro, and we have to conquer it. सो हर दिन सुख दुख बोलना चाहिए। लाइक कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, कभी अप्स डाउन्स, सारी चीजें लगी रहती। बट एक चीज बुरी बात है कि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। सो बेसिकली हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जब भी ऐसी सारी चीजें हो, तो हम सॉल्यूशन की ओर जाएं, ना कि लाइक निगेटिव थॉट्स होते हैं उसको अवॉइड करें। क्योंकि हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं, अगर लिस्टिंग करें, तो पॉजिटिव पॉइंट्स काफी ज्यादा मिलेंगे आपको, जो मैंने वही किया है। आपको निगेटिव पॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे, रेयरली एक दो होंगे। बट इन केस उस टाइम में अगर आप रियलाइज करेंगे बाकी सारी चीजों को और अपॉर्चुनिटी। I think we lost him for a moment. Lost. I think we have lost. Just hold on. I think we just lost him for a moment. Just give me a minute. We were towards the end of the session, but I'm going to try and get him again. Just give me a minute, please. Just give me a minute. I know. I mean, this is. He leaves us speechless. Yes. Yes. There he is. We still have about 5 minutes, so don't worry about that. There he सॉरी is. सर, Welcome back. सॉरी 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 सॉरी। No, don't worry, एक्चुअली don't मैंने worry. सोशल हुआ है तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना लंबा चला जाएगा ये। तो मैंने करीबन 1.5 घंटा का इंस्टाग्राम किया हुआ है, तो वो चला गया था।
तो चीज़ें यही है कि अल्टीमेटली ये है कि आपको मे बी फेलियर के लिए भी प्रिपेयर होना है, चाहे अप्स एंड डाउन्स रहे उसके लिए प्रिपेयर होना है, और अगर आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप आगे बढ़े मे बी, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब ऑसम। पॉसिबल। चित्रसेन, दिस वाज अमेजिंग। एक एक सवाल आया है किसी से, उन लोगों ने पूछा है कि जब आप ये सब एडवेंचर्स जब आप करते हो, आपके घर वालों का क्या हाल होता है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक शुरू में मेरे को भी बहुत ज़्यादा मतलब एक टेंशन होता है शुरू में कि इवन खड़े होने से पहले भी जब आप स्टार्ट करते हैं, जब लाइक अब चलना स्टार्ट करते हैं, तब भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। बट इवेंचुअली जब मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की, तो बता के स्टार्ट किया सारी चीज़ों को, और फिर उसके बाद उनको लगा, मे बी शुरू से उनको बहुत भरोसा था मेरे लिए, तो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, और ये काफ़ी मेरे लिए आसान हो गया फिर। तो उनको एक थोड़ा वरी रहता है, बट उनको लगता है कि Correct. ये सारी चीज़ें मतलब सोच समझ के करता है और स्किल्ड होके करता है। लाइक इवन किलिमंजारो का डिसीजन था, वो काफ़ी लंबा डिसीजन था, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से एब्सोल्युटली। डिसाइड कर लिया और हो गया। मैं भी सो वही पूछना चाहता था कि जब आपने पहली बार बताया होगा मैं किलिमंजारो चढ़ना चाहता हूँ, मतलब राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज किलिमंजारो, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड देयर, एंड देन द फैमिली एक्सेप्टिंग इट दैट ओके ही इज गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस। हाँ, तो किलिमंजारो से पहले क्या हुआ था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मैंने बताया कि पापा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, मम्मी पापा को लेके गए। तो पूरा जो सेशन था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैंने सामने उनको बैठा दिया था, तो उनके जो क्वेश्चन थे सारे दूर हो गए वहाँ पे। उनको अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी फिर घर में आके, तो वो कुछ बोले नहीं। एंड जब उनसे क्वेश्चन किया गया, तो वो पहले भी बहुत प्राउड फील करते थे। इवन बचपन से मैं उसमें अच्छा था स्टडी में, और अब भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए प्राउड फील करते हैं मतलब। तो ये मेरी कमाई है, और मुझे अच्छा लगता है जब वो खुश रहते हैं तो फिर। ऑसम चित्रसेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत 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 धन्यवाद कि आपने आज हमारे लिए समय निकाला, आप लोग आपने हम लोगों से बात की। एंड इफ़ आई विल सेंड यू द कमेंट्स लेटर ऑन, यू मे हैव सीन सम ऑफ देम। Everybody finds your story absolutely unbelievable. They are loving your positivity. Everybody thinks that you have done a fabulous job. And हम हमारी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हम हमेशा है। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू ऑटोबॉक फॉर द रोल दे हैव प्लेड इन योर लाइफ इन विच वट एवर वे दे हैव, एंड टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members who have been with you throughout this time. I think उनका जो सपोर्ट है वो आपके लिए काफ़ी 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 महत्वपूर्ण रहा है। एंड सो फ्रॉम ऑल ऑफ अस, thank you very much. All the best to you, and please achieve everything. We will look forward to your images from Mount Everest. That is what we will look forward to. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू Take सो care, मच। Chitra. Bye. ओके सर, बाय बाय। Oh my God. I literally have 1.5 minutes left for the session, and I didn't want to end this. Shata Shata Pranam to Chitra Sen Sahu, half human robo. I cannot imagine half of us having that kind of positivity or that kind of will. At times, positivity is maybe comes in, but the will to take it to the end is what is amazing from his end. He spoke to us. He spoke to us about all his achievements. He spoke to us about whatever he went through, and I'm glad that he opened up so much. Thank you. I've loved his name right from the beginning. Half human robo. The way he calls himself, he has never ever found any of his the so-called challenging abilities as a hindrance ever. So once again, all the best to Chitrasen Sao, half human robo from all of us. Thank you for speaking to us. And this is Amit Sangekar signing off from Beyond Reading with You, Season 2, Session 10. Please take care.